प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाइयों को, बहनों को, सबको, परिवार को लाइट हाउस मिनिस्ट्री के तरफ से सलाम और जय मसीह। आज बाइबल स्टडी जो है इंग्लिश और उर्दू में भी होगा। So today's Bible study, it will be in English and Urdu. So I'll be preaching in English. One of our brother will be translating in Urdu, Hindi. So come join with us and let us enjoy the Word of God. We need to have fellowship with the Word of God. That's the wonderful enjoyment with the Spirit of God and with the Word of God. So let us, before we go into the message, before we go into the Bible study, let us bow our heads and we'll pray. Hallelujah, 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 hallelujah. Creator of the whole universe, hallelujah, 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 hallelujah. Blessed Master, wonderful Savior, Redeemer, God, we praise you. Thank you, Jesus. El Elyon, El Shaddai, God, we praise you. El Rohi, God, we praise you. El Shaddai, God, we praise you. Creator of the universe, we praise you. Mighty Holy Spirit, we thank you. Jesus, we thank you. For your word, we thank you. For your goodness, we thank you. Lord, we come at thy feet, Lord. We bow before you. You speak and we will listen, Lord. Let your word, Lord, touch and pierce our heart. Lord, pierce us and remove every filth from our lives, O Lord. Every worldliness be gone out of our life, Lord. Sanctify us, purge us and cleanse us. Make us whole. As Father God, as you want us to be whole and clean, Lord, let your presence come. Take control of this Bible study. Purge us, sanctify us. Make us worthy, Lord. And Lord, every church, every brother, and every pastors, every sisters, every mother, every elder, young and old, all be saved, Father God, and all be prepared for thy secret coming, Lord, so that everybody be made ready and be caught up in your coming. We ask all these things, Lord, we keep before you. Let the hearts and minds and thoughts be open. The doors of the heart be open only for the word, not for any negativeness, not for anything of this world, but Lord, your presence rule and reign. Come, Jesus, right now touch our lives. We ask all these things in the wonderful name of our Lord, Savior Jesus Christ. Amen, amen, amen. Now our brother will pray in Hindi. मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में आपका शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए, और खुदा बाप इस घड़ी के लिए, इस जिंदगी के लिए, इन सांसों के लिए, और ख़ास तौर पर खुदा यीशु मसीह नासरी के लिए। खुदा बाप, उसके वसीला से हमें हमेशा की ज़िंदगी और उसके खून में कुव्वत और कुदरत पाई जाती है। खुदा बाप, वही हमारे दिलों को ताजगी और कुव्वत बख्शती है। आपके कलाम में लिखा है कि खुदावंद की हजूरी में हकीकी शादमानी, तसल्ली और इत्मीनान है। खुदा बाप, आपका शुक्र करते हैं जिंदा आसमानी बाप, आज आपने हमें एक बार फिर मौका बख्शा हम आपकी हजूरी में आ सके। और खुदा बाप, दुआ करते हैं खुदा बाप, आज का कलाम, आज की जिंदगी की बातें जिंदा आसमानी बाप हम में से हर एक के लिए खुदा बाप ताजगी का और रूहानी तरक्की का और खुदा बाप हकीकी सुकून और इत्मीनान का वसीला बने। हर तरह का डिप्रेशन, हर तरह के मनफी ख्यालात खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से जाते रहें, और हम खुदावन में, उसकी कुदरत के जोर में, ईमान में, और खुदा बाप रूहानी और बदनी शिफा में बढ़ते चले जाएं। और खुदा बाप जिंदा आसमानी बाप, आप ही के नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। यह हवा पा खुदा, हम शुक्र करते हैं खुदा बाप सारे इंतज़ाम को, इस खुदा बाप इस टेक्नोलॉजी के लिए भी आपका शुक्र करते हैं खुदा बाप, जिसके वसीला से हम आपस में खुदा बाप रफाकत रख सकते हैं, आपस में मिल सकते हैं और तेरे कलाम को शेयर कर सकते हैं। हर तरह का खुदा बाप डिस्टर्बेंस खुदा यीशु मसीह के नाम से दूर किया जाए। और खुदा बाप एक रवानगी के साथ, तसलसल के साथ खुदा बाप जखीरा अल्फाज और कलाम बख्श देना। खुदा बाप आसमान के दरीचों को खोल कर अपने बंदा को खुदा बाप अपनी रूह की हदायत में इस्तेमाल करना, और ताकि खुदा बाप बहुत सी रूहें खुदा बाप ताजगी पाएं ईमान में, और खुदा उनकी मोहब्बत में और जोर में, बातनी इंसानियत में बढ़ते चले जाएं। और खुदा बाप हम आपके ही लिए खुदा बाप जिंदा आसमानी बाप जीते रहें। हम जागते हों या सोते, यानी हम जिंदा हों या हम खुदावन में सो जाए, हम खुदावन के लिए हैं और खुदावन ही की हमद व तारीफ और सिताइश करते रहेंगे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू।
खुदा उनके नाम को जला लो। Yes. आज अब हम उर्दू और हिंदी और इंग्लिश we will be translating, our brother will be translating in Urdu, Hindi, and I'll be giving the message in English. Today's topic is goodness of God. हाँ, आज हम जो खुदा के कलाम पर गौर करेंगे, खुदा भला है, खुदावंद की भलाई पर गौर करेंगे। Because always we receive the goodness in our life. क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि हमारी जिंदगी में भलाई पाई जाती है। Always we want goodness, whether in our family life, whether in a job, whether in our spiritual life, in everything we want goodness. हाँ, हम हर एक चीज में अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं, चाहे वो हमारी जिंदगी के घरेलू हो या हम काम काज में, हर एक बात में हम अच्छाई चाहते हैं। So goodness of God is we receive, but how much do we know and how much do we thank God for His goodness? हाँ, हम बहुत सी भलाई बातों को, अच्छाइयों को पा तो लेते हैं, कबूल करते हैं, लेकिन किस तौर से हम खुदावंद का शुक्र बजा ला सकते हैं इन भलाइयों के लिए। See, many times we think with small things that we lost something, but in major things we receive goodness of God. हाँ, कभी कभी हम छोटी छोटी चीजें खो भी देते हैं, लेकिन जो बड़ी भलाई और अच्छाई की चीजें हैं उनके लिए खुदा का शुक्र करना है। So always we need to thank God for the goodness. हाँ, हमें हमेशा खुदा की भलाइयों, अच्छाइयों के लिए और चंगी चीजों के लिए खुदा उनका शुक्र करना है। Hallelujah. हालेलुया। We will see about the goodness in Romans chapter 2. हाँ, खुदावंद की भलाई को देखते हुए हम रोमियो का खत और उसका दूसरा बाब To 4th verse. और उसकी चौथी आयत में पढ़ते हैं, देखते हैं। Romans chapter 2, 4. रोमियो का खत, पालूस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम खत और उसका दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत। Yes. So in that we'll see what the word of God says. हाँ, हम यहाँ पर देखते हैं कि कलाम क्या फरमाता है। Don't you see how wonderful, kind, tolerant and patient God is with you? Does this mean nothing to you? Can't you see that His kindness is intended to turn you from your sin? हाँ, या तो उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है। God is kind. खुदा भला है। God is wonderful. और खुदा अजीम है। God is tolerant. और खुदा बर्दाश्त करने वाला। God is patient. और खुदा में तहम्मुल और सब्र पाया जाता है। We see all this goodness in God. हम देख रहे हैं कि कलाम में ये सारी अच्छाइयां खुदा में पाई जाती हैं। So though we see the goodness of God, yet we don't thank Him. अगरचा खुदा में ये सारी भलाइयां मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हम उसका शुक्र बजा नहीं लाते। Amen. So when we see this goodness, we always need to thank God. हाँ, जब हम इन भलाइयों और चंगाइयों पर गौर करते हैं तो हमें खुदा का शुक्र बजा लाना चाहिए। Praise the Lord. Praise the Lord. It's very important for us. हाँ, ये हमारे लिए बहुत ही अहम है। When we look into Psalms 107, जब हम ज़बूर 107 में देखते हैं, let us read 1 and 2. हाँ, ज़बूर 107 का पहला और दूसरा वचन देखते हैं। Let us stay in Psalms 107, 1 and 2. 107 ज़बूर की किताब 107 और उसका पहली और दूसरी आयत। You can read in Urdu. हाँ जी, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है। खुदावंद के छुड़ाए हुए यही कहें जिनको उसने फिदिया देकर मुखालिफ के हाथ से छुड़ा लिया। Amen. Give thanks to the Lord for His good. His faithful love endures forever. Has the Lord redeemed you? Then speak out. Tell others He has redeemed you from your enemies. Amen. 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 So we have to tell about His goodness to everyone. हाँ, हमें खुदा की इस भलाई को हर किसी को बताना है। The Bible says, हाँ, कलाम मुकद्दस बयान करता has है, the Lord redeemed you? जैसा कि खुदावन ने आपको छुड़ाया। Is this a question? हाँ, यहाँ पर एक सवाल है। Did God heal you? क्या खुदा ने आपको चंगाई बख्शी? Did God give you peace? क्या खुदा ने आपको सुकून दिया? Did God give you job? क्या खुदा ने आपको नौकरी और रोजगार बख्शा? Did God give you good house? क्या खुदा ने आपको एक अच्छा घर भी बख्शा है? Did God heal you? क्या खुदा ने आपको शिफा दी?
So all this is the goodness that is provided to you. हाँ, ये सारी वो चंगाइयाँ और भलाइयाँ हैं जो आपको मुयस्सर हैं, So we should be thankful to God. और हमें इनके लिए खुदा का शुक्र बजा लाना चाहिए। That's why David says, इसीलिए तो दाऊद नबी बयान करता है, give thanks to the Lord for his good. हाँ, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है। His faithful love endures forever. हाँ, उसकी मोहब्बत और शफकत अब्दी है। God is faithful. हाँ, खुदा हमेशा वफादार है। God is always good. हाँ, खुदा हमेशा भला और अच्छा है। Because of his faithfulness, he is good. हाँ, उसकी वफादारी के वसीला से वो अच्छा है। Hallelujah. Hallelujah. What he said, I am God. हाँ, और क्या उसने जो कहा कि मैं खुदा हूँ, What he's a creator, जो कुछ उसने पैदा किया, he knows to provide them. हाँ, वो जानता है कि जो कुछ उसने बनाया है उसको मुहैया कैसे करना When है। we call in times of trouble, he will listen and heal us. हाँ, हम जब मुसीबत के वक्त में पुकारते हैं तो वो हमें छुड़ाता और शिफा बख्शता When है। we repent and ask forgiveness, he forgives us. हाँ, जब हम पछताते और तौबा करते हैं तो हमें मुआफ करता है। So God, what he spoke is faithful to it. हाँ, खुदा ने जो कुछ कह दिया है वो उस पर पक्का पूरा उतरता है। What God has loved us and created us, he's been a creator, a father to us. हाँ, जो कुछ खुदा ने पैदा किया है उसने हमें भी बाप की तरफ से पैदा किया। हाँ, वो एक बाप की मानंद हमें संभालता। हाँ, एक बाप की तरह हमें संभालता और He shows the love of a father. वो एक बाप की मोहब्बत को हम पर जाहिर करता है। He shows the love of the mother. वो एक माँ की तरह भी प्यार करता है। He says he comes closer to us. हमें उसके करीब आना है। When he comes closer, we need to go closer. जब वो हमारे करीब आना चाहता है तो हमें भी उसके करीब आना है। We always need to be going closer to God. हमें हमेशा खुदावंद की हजूरी में कुर्बत में आना चाहिए। We can go closer maybe with out of love. हम उसकी मोहब्बत में उस तौर पर तो नहीं करीब आ सकते। Now we might go out of love, we might go closer to God. हम उसकी मोहब्बत से हम आगे उसके करीब जा सकते हैं। But some people go for needs to seek God. लेकिन बहुत से लोग सिर्फ अपनी जरूरतों को देखते हुए उसके करीब आते हैं। So anyway, the both ways people go to God. हाँ, इन दोनों सूरतों में लोग खुदावंद की हजूरी और कुर्बत में आते We हैं। need to go in good times as well as bad times. हमें खुदावंद की हजूरी में अच्छे वक्त में, खुश वक्त में और बुरे वक्त में भी खुदावंद की हजूरी में आना। We have to learn from God. He's faithful in every part of his life and is through his word is faithful to us. हाँ, हमें ये सीखने की जरूरत है कि खुदा हर एक हाल में हमारे साथ वफादार और हमें प्यार करता है। So such faithful God, the creator of the universe, when he's faithful, his creation should be faithful to him. हाँ, वो अगर इतनी कायनात का खालिक और मालिक होते हुए हमसे इतना वफादार है तो उसकी मखलूकात को यानी हमें भी उससे वैसा ही वफादार होना चाहिए। His love endures forever. His love remains forever. Even the wicked God doesn't want them to die. खुदा की मोहब्बत और शफकत अब्दी है, हमेशा के लिए है, हत्ता कि वो चाहता है कोई गुनहगार भी हलाक ना हो। So he's loving the whole creation. वो अपनी सारी मखलूकात से प्यार करता है। He's not, we can say we are Christians, they are other religion, other place and colors and creed. This is all human things. But when God thinks, he doesn't think about his people's color, caste, height, weight, nation, but his love endures forever for all the human race. हम इंसान होते हुए तो ये सोच सकते हैं कि ये इस मजहब का है, ये काला है, ये गोरा है, लेकिन खुदा जिसने हर एक को पैदा किया है उसके लिए तमाम दुनिया के लिए एक सी मोहब्बत है। That is what we're talking about, the goodness. यही तो हम खुदावंद की भलाई और अच्छाई के बारे में सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं। Though we are imperfect, अगरचा हम मतलब कामिल नहीं, though we are not obedient to God, बेशक हम खुदा के उस तौर से वफादार भी नहीं रहते, though we are not having any type of godliness in us, अगरचा हमें कोई भी ऐसी दीनदारी और खुदा के मुतल्लिक नहीं है वैसी, yet is faithful and his love is for us all. लेकिन फिर भी वो हमें इन हालात में भी सबसे ज्यादा प्यार करता है। So that's why his goodness always counts. इसीलिए उसकी जो मोहब्बत है हर एक हालत में शुमार की जाती है। So when the second verse says, has the Lord redeemed you? दूसरी आयत में बयान किया गया है कि खुदावंद के छुड़ाए हुए यही कहें। So
has the Lord redeemed you? क्या खुदा ने आपको वाकई ही में छुड़ाया है? Then speak out. और अगर छुड़ाया है तो बोल उठें Tell others. और दूसरों को बताएं। He's redeemed you from your enemies. उसने उनको फिदिया दिया उनके मुखालफों से। So what we should ask God, redeem me, heal me, set me free. I will tell about your goodness to everybody. हमें हमेशा ये कहना चाहिए कि खुदा ने मुझे हमेशा आजाद किया है, छुड़ाया है मेरे दुश्मनों से और मेरी बीमारियों से। Amen. So we need to proclaim it. हमें इसको बयान करने की जरूरत है। Always we need to proclaim in our mouths too. हमें हमेशा अपने मुंह से इसका इकरार करने की जरूरत है। Thank you, Jesus. खुदावंद आपका शुक्र हो, Your goodness, आपकी भलाई के your लिए, faithfulness, आपकी वफादारी के your लिए, love endures forever. आपकी मोहब्बत जो अब्दी है, आपकी शफकत जो अब्दी है, उसके लिए शुक्र करते हैं। Thank you, Lord. थैंक यू लॉर्ड। Proclaim it. इसको बयान करें और इकरार करें। God receives that. That is what God wants. यही तो खुदा चाहता है। Amen. Always to tell about His goodness. हमेशा खुदावंद की भलाई का इकरार करते रहें। Amen. You Amen. need to proclaim His goodness. आपको उसकी भलाई की गवाही देने की जरूरत है। Same chapter we read 8th verse. इसी ज़बूर 107 की 8वीं आयत में देखते हैं, काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातर उसकी सताइश करते। Amen. Let them praise the Lord for His great love and for the wonderful things He has done for them. काश के लोग खुदावंद की उस अजीम मोहब्बत और अजायब के लिए शुक्र करें। When the children of Israel, they were passing through the desert or the wilderness, जब बनी इस्राएल कौम बियाबान में से गुजर रही थी, so God expected to give glory to Him. खुदा उनसे तवक्को कर रहा था कि ये मेरे नाम की शुक्रगुजारी करके मुझे जलाल दें। Let them praise the Lord. और वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। Praise the Lord for His love. उसकी मोहब्बत के लिए उसका शुक्र बजा लाएं। For His goodness. और उसकी भलाई के लिए। And proclaim it. और उसका इकरार करते। Sing and praise Him. और उसकी सताइश के गीत गाते। Hallelujah. That's what God was expecting. यही तो खुदा हमसे चाहता है। He was a cloud of pillar by day. खुदा दिन के वक्त में सतून की मानिंद उनके साथ था। And cloud of fire pillar by night. और आग के सतून की मानिंद रात को उनके साथ So yet people murmured. लेकिन फिर भी लोग उस तौर से नाशुक्रे रहे। They're always budbudana. They wish to be always angry, always fighting, always quarreling. वो हमेशा खुदा उनके खिलाफ बुड़बुड़ाते रहे और शिकायत करते रहे। So my dear brother and sister, सो मेरे प्यारे बहन भाइयों, we should always be thankful to God. हमें हमेशा खुदावंद का शुक्रगुजार होना चाहिए। For every matter, a small thing, we should be faithful to God. कोई भी मसला, कोई भी मामला हो, हर एक छोटी छोटी बात में शुक्रगुजारी करें। When we see the goodness of God, जब हम खुदावंद की भलाई को देखते through हैं, this Bible study, we will learn more about the goodness of God. हम आज कलाम के वसीला से सीखेंगे और ज्यादा खुदावंद की भलाई। When we know more goodness of God, what happens? The love from our heart comes out. It flows. जब हम खुदावंद की चंगाइयों भलाइयों पर गौर और फिक्र करते हैं तो हमारे दिल में से शुक्रगुजारी निकलती है। So what happens? तो फिर क्या होता है? So God surely will be loving us. तो खुदा यकीनन हमसे मोहब्बत और प्यार करता है। Amen. So he's also pleased by that. वो हमारी शुक्रगुजारी से खुश होता है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That's what the earth, when we praise God, when we thank Him, we remember His goodness. In the heaven, God's angels watch over that. जब हम इस जमीन पर रहते हुए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी हमद करते हैं और जो आसमान पर फरिश्ते देखकर भी खुश होते हैं। Amen. God feels proud about us. खुदावंद फिर हम पर फख्र महसूस करता है। 9th verse says, और 9वीं आयत में लिखा है, और He satisfies the thirsty, क्योंकि वो तरसी जान को सैर करता है and fills the hungry, और भूख की जान को नेमतों से मालामाल करता with है। good things. नेमतों के साथ उनको मालामाल Good करता things. है। अच्छी चीजों से, Good things. चंगी चीजों से। Let us say our God is good, so He gives us good things. आए कहें कि हमारा खुदा भला है और वो हमें अच्छी चीजों से नवाजता He's है। a good God. वो भला खुदा है। He's a righteous God. वो रास्तबाज खुदा है। So He gives everything good. इसलिए वो हर एक चीज अच्छा ही देता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You know, when we listen
listen to the word of God क्या आप जानते हैं जब हम कलाम को सुनते हैं freshly, और ताजा कलाम को सुनते हैं, what happens? It reminds, हाँ, ये हमें फिर याद दिलाता है, yes, our God is good. हाँ, हमारा खुदा भला है In Him is all goodness. और उसी में हर तरह की अच्छाई पाई He is जाती है। faithful. हाँ, वो वफादार खुदा He is है, loving kindness. हाँ, वो वफादार और मोहब्बत से भरा है, Endures forever. और वो भला है और अब्दी है। Amen. आमीन। Hallelujah. God does not expect, oh, you should have a faith of a mountain or anything. If you are faithful with little thing, God help us in our doubting time of our faith when the faith goes down. हाँ, खुदा ये नहीं चाहता कि हमारा ईमान पहाड़ की मानद हो, बल्कि वो हमारे छोटे से ईमान की तवक्को रखता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी ईमान के साथ करें। Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the How to increase the love of God in us? हाँ, हम किस तरह से खुदा की ये भलाई और मोहब्बत को अपने आप में देख सकते When हैं। we hear, always remind ourselves, God is always good. हाँ, जब हम इस पर गौर करते हैं और अपने आप को याद लाते हैं कि खुदा वाकई बहुत भला है। He's a blessed God. हाँ, वो एक बाबरकत खुदा है। Though my life is not right before Him, बेशक हमारी जिंदगी उसके सामने अच्छी नहीं, yet He's faithful. हाँ, तो भी वो एक वफादार खुदा है And He shows His goodness over me. और वो हमेशा मुझ पर अपनी भलाई को जाहिर See, करता है। we are not consumed by God's anger. हम खुदावंत के जो गजब है उसके लिए नहीं, We are not consumed. हम उसके गजब को सह नहीं सकते। Consume यानी कि इस्तेमाल, consume means to be burnt or हाँ, कंज्यूमिंग फायर, yeah. हाँ, So we are not consumed by His anger, हम उसके गजब से हलाक नहीं होते, but He shows favor upon us and loves us and forgives us. हाँ, लेकिन वो हम पर अपनी मोहब्बत को और अपनी वफादारी को और अपनी भलाई को जाहिर करता है, ना कि अपने गजब को हम पर जाहिर करता है। Praise the Lord. Praise the Lord. So that is what we see. We should see the goodness of God. हाँ, इसीलिए हम खुदावन में ये भलाई देखते So हैं। always we say, "Good, thou art good God. Thou art a good God." इसलिए हमें हमेशा कहना चाहिए कि आए खुदा तू भला खुदा है, And you always pour out your goodness upon us. और तू हमेशा अपनी भलाई और अच्छाई को हम पर Thank you. अंडेलता है। Always thank Him. हमेशा खुदा उनका शुक्र बजा लाए। He's faithful, so we should be faithful. अगर वो भला है तो हमें भी उसकी भलाई के लिए उसका शुक्र Let बजा us लाना read same chapter 15th verse. है। ज़बूर 107 की 15 आयत में देखते हैं, Let them praise the Lord for His great love and for the wonderful things He has done for them. हाँ, काश के लोग खुदावंत की शफकत की खातर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातर उसकी सिताइश करते। Amen. Let them praise the Lord हाँ, खुदावंत की सिताइश करो for His great love. और उसकी अजीम मोहब्बत के लिए। His love is not little. उसकी मोहब्बत कोई छोटी नहीं, His love is great. लेकिन उसकी मोहब्बत एक अजीम मोहब्बत है। And for His wonderful thing He has done for us. उसने हमारे लिए बड़े बड़े अजायब काम किए हैं। We are also passing through the wilderness now. हम भी एक तरह से बियाबान में से ही गुजर रहे हैं। We face lot of troubles. हम बहुत सी मुश्किलात का सामना है। This is also now as we are in this outside our countries, we are going through many situations. हाँ, हम यहाँ पर जब बैरूने मुल्क में होते हुए बहुत से ऐसे हालात में से गुजरते हैं। Our families are there. हमारे जो खानदान है दूसरे मुल्कों में, Our minds and thoughts will be upon our families, हमारी सोचें और फिक्रें हमेशा हमारी फैमिली की तरफ लगी रहती हैं। upon our health, हमारी सेहत के बारे में हम सोचते हैं, about our jobs. हमारी नौकरी के बारे में हम So सोचते हैं। we could be disturbed. हम इसलिए हमेशा परेशान हाल रहते हैं। So but we always need to thank God in that situation. हाँ, लेकिन फिर भी हमें इन हालात में भी हमेशा खुदा का शुक्र करना है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It's not that God should show faithfulness for you or He should love you because you are so good. हाँ, खुदा अपनी मोहब्बत और भलाई को इसलिए नहीं आप पर जाहिर करता कि आप बड़े अच्छे और चंगे हैं, But yet His faithfulness, that is called His faithfulness. Though we are not qualified to get His goodness, yet He is faithful. He loves us. हाँ, अगरचे हम उसकी भलाई के लायक भी नहीं तो भी वो हम पर अपनी भलाई और चंगाइयों को करता है। He bears everything that we do sin, yet He bears it. हाँ, वो हमारी तमाम तर गुनाहों और बुराइयों की बर्दाश्त करते हुए भी हमसे मोहब्बत करता है। Exodus 34:6. हाँ, खरूज की किताब और उसका 34 बाब और उसकी 6 आयत।
देखते हैं। Exodus 34th chapter, 6th verse. Yeah. 4:6 The Lord passed on in front of Moses, calling out, Yahweh the Lord, the God of compassion and mercy, I am slow to anger and filled with unfailing love and faithfulness. I lavish unfailing love to 1,000 generations. I forgive iniquity, rebellion, and sin, but I do not excuse the guilty. I lay this. So here I stop it. So we could see His goodness. हाँ, हम यहाँ पर खुदावन की भलाई को देखते हैं कि लिखा है 6ठी आयत में, और खुदावन उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावन खुदा, खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी, हजारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और खता का बख्शने वाला। आमीन। Amen. So what we see, He passed before Moses, हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि वो मूसा के सामने से गुजरता है खुदावन, and what He says, और क्या कहता है? the Lord passed in front of the Moses, calling out, Yahweh the Lord. खुदावन खुदा। So Moses is telling this, Yahweh the Lord, और वो मूसा जो उनसे पुकार रहा है, कह रहा है, God of compassion and mercy. खुदाए रहीम और Sorry, God, Yahweh God is telling, Yahweh the Lord, हाँ, खुदावन यहोवा पुकार रहा है कि खुदाए रहीम, the God of compassion और मेहरबान and mercy, और कहर करने में धीमा, I am slow to anger कहर करने में धीमा, and filled with unfailing love और शफकत और वफा में गनी, and faithfulness. और वफादार खुदा। Amen. So God Himself is telling who He is. खुदा खुद बयान कर रहा है कि वो किस तरह की सिफात He is रखता है। introducing Himself to the people, children of Israel. वो अपने आप को बनी इस्राएल कौम पर जाहिर कर रहा है, बता रहा है। So as if, sir, I am so and so, I am from so and so, from the country. What is your specialty? Now God is telling that I am Yahweh the Lord. His specialty is He is a compassion God. वो अपने आप में खुदावन यहोवा खुदा बयान कर रहा है कि वो किस तरह से मेहरबान और कहर करने में और शफकत में Slow to anger वो कहर करने में धीमा है, and filled with unfailing love. और वो मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है। He's always filled, not little. वो हमेशा भरपूरी से भरा हुआ है। He's filled with unfailing love. वो मोहब्बत से भरा हुआ He's खुदा full है, of compassion and full of mercy. और वो तरस और रहम से भी भरपूर और भरा So है। this is an opportunity for everyone, maybe sinners or good, everybody can run to the mercy place of God, the mercy seat of God, and we can proclaim saying your compassion, your faithful, your Lord forgiving God. ये खुदावन की एक ऐसी सिफ्त है जिसको देखते हुए हर कोई उसके सामने तख्त के फजल के सामने आकर खुदा उनका शुक्र कर सकता है कि वो मेहरबान और रहम करने में धीमा है। Only we need to come the way we are. हमें सिर्फ जिस भी हालत में है हमें उसके सामने उसके हुजूर आने की जरूरत है। Don't prepare yourself, Lord, I come the way I am. खुदा से कहें कि मैं जिस भी हाल में हूँ खुदा मुझे कबूल करे। Amen. He is ready to accept you. वो हमेशा हमें कबूल करने के लिए तैयार रहता है। But what we say, a little bit I will make ready myself. लेकिन हम सोचते और कहते हैं कि मैं जरा थोड़ी तैयारी कर लूं। I will take fasting. मैं रोजा रख लूं। I will pray. और मैं ज्यादा दुआ करूंगा, फिर खुदा के पास आऊंगा। Then change myself. और अपने आप को जरा तब्दील करूं। Then I will go near God. फिर मैं शायद खुदा के पास जाने के लायक हूं। We cannot qualify ourselves. हम अपने आप उसके हुजूर में आने के लिए तैयार नहीं हो सकते। What did children of Israel have? जो बनी इस्राएल कौम थी वो किस तरह की? They were slave. वो एक गुलामी की हालत में थे। God accepted them. खुदा ने उनको कबूल किया। He wanted to give them and bless them with a rich land. खुदा उनको एक अमीर सरजमीन, वादा की हुई सरजमीन So the same God is today. आज भी वही खुदा है। Though we walk through the valley
हाँ, अगर जब हम उस वैली में से गुजरते हैं, yet God is faithful. हाँ, तो भी खुदा हमारे साथ है। In this wilderness, He is faithful. हाँ, वो उस बियाबान में भी वफादार खुदा है। In our shortcomings, He is faithful. हमारी खामियों और कमजोरियों में भी वफादार। In our weakness, He is faithful. हमारी कमजोरियों में भी वो वफादार। In our sinful manner, yet He is faithful upon us. अगरचा हम गुनाह की हालत में होते हुए भी वो हमसे वफा करता है। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Always we need to glorify. We have to think about the goodness of God. हाँ, इस बातों को देखते हुए हमें खुदा का शुक्र बजा लाना चाहिए। Thank you, Jesus. हाँ, खुदावंद का शुक्र करें। Thank you, we are in control. हाँ, उसकी उस मोहब्बत के लिए शुक्र करें। Amen. Hallelujah. First Chronicles 16 chapter 34. हाँ जी, पहला तवारीख और उसका 16 बाब। 16 chapter, First Chronicles 16 chapter 34. हाँ, पहली तवारीख 16 बाब और उसकी 34 आयत। Let us read, yeah. हाँ जी, खुदावंद का शुक्र करो इसलिए कि वो नेक है, क्योंकि उसकी शफकत अब्दी है। Amen. Amen. Hallelujah. What it says in King James Version, it says, "Oh, give thanks to the Lord for His good, for His mercy endures forever." हाँ, किंग जेम्स वर्जन में लिखा है कि खुदावंद का शुक्र करो इसलिए कि वो नेक है। We'll see in NLT. It says, "Give thanks to the Lord for His good, His faithful love endures forever." Same thing. हाँ जी, और जो दूसरे NLT में भी यही बात लिखी है कि खुदावंद So भला। the scripture says, "Give thanks." हाँ, और कलाम बयान करता है कि खुदावंद का शुक्र करो। He is always good. अब वो हमेशा भला खुदा है। He is always good. वो हमेशा भला So है। we always need to thank God. इसलिए हमें हमेशा उसका शुक्र करते रहना Pastor, है। only when there is a testimony I can thank God. हम कहते हैं जब हमको गवाही होगी फिर ही हम खुदावंद का शुक्र No, करेंगे। the Bible says, "Give thanks always, for He is good always. हाँ, हर वक्त हर हाल में खुदावंद का शुक्र He करते is रहें। faithful always. वो क्योंकि हमेशा भला है। His love always endures. हाँ, उसकी जो मोहब्बत है अब्दी मोहब्बत है। He is slow to anger. वो कहर करने में धीमा है। He is always loving. वो हमेशा भला खुदा है। He is always merciful. वो हमेशा मेहरबानी करने वाला है। So what we need to do is always the same. So we should not change. In whatever condition, whatever character you are, you have to call unto the Lord. You should say, "Lord, though my character is not good, yet you are faithful, you are merciful, your love endures forever." हाँ, अगर जब खुदा हर हाल में हम पर भला है और हमसे मोहब्बत रखता है तो हमें भी हर एक हालत में, अगरचे हम कमजोरी की हालत में हैं और किसी भी हालत किसी भी किरदार कशी में है, तो भी हमें हमेशा खुदावंद का शुक्र बजा लाना है। The moment we always thank God, give thanks to Him always, regularly, you see, that's it. God is pleased and is always attentive to your thanks. हाँ, हर लम्हा ब लम्हा जब हम खुदावंद का शुक्र करते रहते हैं तो खुदावंद देखता है और यही रास्त और मुनासिब है कि हम उसका शुक्र करते So हैं। He is very close to us. और तभी वो हमारे करीब आता है। He is faithful, so His children shall be faithful. हाँ, अगर चाहे वो वफादार है तो उसके बच्चों को भी वफादार होना है। When He is loving, अगर वो मोहब्बत रखता है, when He can love you at your conditions, अगर चाहे वो किसी भी हालत में आपसे मोहब्बत कर सकता we है। should also love others. Let them be very angry, very cunning to us. We should love them. हाँ, अगर चाहे हम दूसरे जब किसी भी हालत में अगर चाहे चालूपन है और हम गुस्से में किसी भी हालत में हम खुदावंद का शुक्र करें। Some people say that they don't talk. Okay, they don't like us to talk with them. हाँ, कभी कभी हम सोचते हैं कि दूसरा बंदा मुझसे बात करना पसंद नहीं करता। There's no problem. हाँ, तो फिर कोई मसला नहीं। But you can always pray for that person. हाँ, लेकिन आपको उसके बारे में के लिए भी हमेशा दुआ करना है। May God open opportunities. हाँ, और खुदा फिर रास्तों को खोलता है। May God open opportunities that we may have compromise, we may love one another. हाँ, जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं फिर खुदा मौके फराहम करता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रख सकें। So God will give an opportunity, will open an opening so that we can have forgiveness and forget all the past things. हाँ, और फिर खुदा हमें ये मौके फराहम करता है कि हम पिछली बातों को भूलकर मोहब्बत में और रफाकत में बढ़े। When we see Ezra chapter 3:11, जब हम अज़रा की किताब देखते हैं, Ezra 3:11, it says, अज़रा की किताब उसका 3 बाब और 11 आयत। 3:11, and they sang responsively.
praising and giving thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever towards Israel. Amen. Praise the Lord. Amen. 3:11. 3:11. Yeah. No problem. Again, we'll read Ezra 3:11. It says, they sang responsively. They are singing songs responsively. हाँ, सो वो बाहम नबूवत खुदावन की सताइश और शुक्रगुजारी में गा गा कर कहने लगे कि वो भला है, क्योंकि उसकी रहमत हमेशा इस्राएल पर है. Amen. आमीन. So they sang responsively, praising and giving thanks to the Lord. हाँ, वो गा गा कर खुदावन का शुक्र और उसकी तारीफ कर रहे हैं. So we can wordly we can praise. हम मतलब बोलकर और कहकर खुदावन की सताइश कर सकते हैं. And we can sing and praise. और हम खुदावन की सताइश और शुक्रगुजारी गा गा कर भी कर सकते हैं. We can give thanksgiving to God. और हम खुदावन को शुक्रगुजार कहना है. So always in every part of your life we need to thank God. और हमें जिंदगी के हर पहलू में खुदावन का शुक्रगुजार होना है. When we thank in whatever condition we are, हम किसी भी हालत में हो, जब हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, God receives that thanksgiving. और खुदा उस शुक्रगुजारी के हदिये को कबूल करता है. God will come closer to you. और फिर खुदा आपके करीब आता है. And God will touch your situations. और फिर खुदा आपकी किसी भी हालत में हो आपको छूता है. Whatever conditions you are. आप किसी भी हालत में क्यों कर हो. Maybe you have lot of sins or shortcomings. हो सकता है आप बहुत कमजोर और अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हो. But God is faithful. लेकिन खुदा भला खुदा है. But He doesn't see your sin. वो आपके गुनाहों पर नजर नहीं करता. He wants to clean the sin. वो तो चाहता है कि आपके गुनाहों को दूर करे, साफ करे. We cannot. God is not telling hide your sin and come to me. खुदा ये नहीं चाहता कि हम अपने गुनाहों को छुपाएं और खुदा उनके पास आएं. No, come openly what way you are. हाँ, जो कुछ जैसा भी आपका दिल है पूरे दिल के साथ खुदा उनकी. That's why He gave His Son Jesus. इसीलिए तो उसने अपने बेटे को पेश कर दिया. That's why He offered His blood, that Jesus should die and should shed the blood. हाँ, इसीलिए तो उसके बेटे ने अपना खून बहाकर हमें गुनाहों से आजाद किया. Amen. That He can wash any sin. और वो उसका खून हमें हर तरह के गुनाह से that He can change any condition. वो हमारी हर एक हालत को तब्दील कर सकता है. That is the goodness of God the Father. हाँ, यही तो खुदावन की भलाई और अच्छाई है. That is the goodness of His Son Jesus. और यही उसके बेटे खुदावन यीशु मसीह की भलाई. And that is the goodness of the Holy Spirit. और यही खुदा के पाक रूह की भलाई है. We need always the goodness of God. हमें हमेशा खुदा की भलाई की जरूरत है. So sometimes we might go late also in the line. अगरचे कभी कभी हम लाइन में लेट जाते हैं. Somebody would see that if you are going to catch the flight or something, they say come, they will take you out and they will let you go first. हाँ, कभी कभी जब हम किसी जरूरी काम जाना हो तो देर भी हो जाए तो वो आते हैं, आपको कबूल कर लेते हैं, आ जाए बेशक आप लेट हो गए. हाँ. So they will give us first preference because we have to go board the flight. हाँ, जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो जो लेट होता है उसको सबसे पहले मौका देते हैं, आपकी फ्लाइट जाने वाली, आप जल्दी आ जाए. So that's a goodness. हाँ, यही तो भलाई है. Hallelujah. Hallelujah. So this is the same thing. God, He doesn't see us. He wants the sinners to come first. हाँ, इसी तरह खुदा भी चाहता है कि जो गुनाहगार है वो पहले मेरे पास आए. Come the way you are. हाँ, किसी भी हालत में हो आप मेरे पास आए. He's ready to accept us and change us. हाँ, वो हमेशा तैयार रहता है और हमें कबूल करता है ताकि हमें तब्दील करे. Amen. Hallelujah. Amen. Let us read 23rd Psalm 6 verse. हाँ, ज़बूर 23 और उसकी 6 आयत देखते हैं, पढ़ते हैं. Amen. Surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. हाँ, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगे और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा. See, what a wonderful word is this. देखिए यहाँ पर कितना ही अच्छा कलाम है. Surely goodness and mercy shall follow me. यकीनी तौर पर यकीनन भलाई और रहमत. We need all, as long as we are in the flesh,
everyone, maybe pastor, maybe everyone needs goodness and mercy till we live in this earth. हम जब तक हम इस बदन में हैं हमें हमेशा रहमत और भलाई की जरूरत है जब तक हम इस बदन से चले नहीं जाते। Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हमेशा मेरे साथ साथ रहेंगे। And I will dwell in the house of the Lord. और मैं खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। Then only you can dwell always. और इसी हालत में आप खुदावंद के घर में सुकूनत You कर need सकते हैं। your point. God's point is that you should be in His house. That's why He want to show mercy and goodness all the days of the life. उम्र भर वो अच्छाई और भलाई के साथ हम पर करके हमें हमेशा अपने घर में रखना चाहता है। The point is we should be in this house. और नुक्ता जो खुदावंद का नुक्ता मतलब मेन काम है वो ये है कि खुदा की हजूरी में उसके घर में रहें। Every children of God needs to be in His house. हर एक खुदा का जो फर्जंद है वो खुदावंद के घर में हमेशा के लिए रहे। Our place is staying in the house of God. हमारी जो जगह है और हमारी जो वतन है वो खुदावंद का घर है। See, in conditions like this, during COVID-19, people, we miss the church. हम देख रहे हैं कि आजकल ये वबा की सूरत में हम चर्च नहीं जा सकते। We don't have fellowship and we miss that. हम चर्च बिल्डिंग्स में आपस में रफाकत नहीं रख रहे और एक दूसरे का मिस करते हैं। But still, God, He did not allow that disconnection of the fellowship. लेकिन खुदा इस हालत में भी हमारे जो रफाकत को है वो बहाल रखता है। Amen. Amen. He's allowing us to have a media. To media we can have fellowship. खुदा ने हमें ये मीडिया और ये टेक्नोलॉजी बख्श दी है ताकि हम आपस में मिले रहें। God wants to see all good things I give. खुदा बयान करता है कि सारी अच्छी चीजें मैंने बख्शी हुई I gave you a good house. मैंने आपको एक अच्छा घर बख्शा I gave you मोबाइल बख्शे हुए हैं। I gave you computers. खुदा ने हमें कंप्यूटर भी दिए हैं। Always you have WhatsApp, you have everything data in that. But what for you are using it? और खुदा ने हर तरह का मतलब अच्छे सॉफ्टवेयर भी हैं लेकिन हम उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। So this is the good time. यही तो अच्छा वक्त है to have fellowship one another. एक दूसरे के साथ इन टेक्नोलॉजी के जरिए से रफाकत रखें। So we are having a connection through the fellowship through the word of God. और हम इस खुदा के कलाम के वसीला से भी आपस में रफाकत रखें। This reminds us that goodness always prevailing upon us. So we should be thankful to our God. और कलाम बयान करता है कि खुदा की भलाई हमेशा हम पर जाहिर और नछावर होती रहती है, हमें खुदा उनका शुक्र करना है। Amen. Amen. Psalms 145:9 says, ज़बूर 145 की 9 आयत में लिखा है, we'll read it, 145. ज़बूर की किताब और 145:9. 145 की 9 आयत। The Lord is good to everyone. He showers compassion on all His creation. खुदा 9 and 10 will read. And all of your works will thank you, Lord, and your faithful followers will praise you. Amen. आमीन। 145 की 9 और 10 आयत ज़बूर की किताब। खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। 10 आयत, आए खुदावंद तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। See, the Lord is good to everyone, irrelevant sinner, irrelevant righteous people, irrelevant whatever is the caste or creed, He is good to everyone. हम यहाँ पर देखें कि खुदा हर एक पर मेहरबान है अपनी मखलूक, चाहे वो रास्तबाज है, नारास्त है, कोई भी फिरका है, कुछ भी है, वो सब पर एक जैसा मेहरबान है। And He showers compassion on all creation. और वो अपनी सारी मखलूकात पर अपनी रहमत को जाहिर करता है। And all of your works will thank you, Lord. हाँ जी, All of your works will thank you, Lord. और खुदावंद की मखलूक उसका शुक्र करे। Amen. See, the works
the God what He created, everything, the trees, the leaves, and everything, the plants, animals, they are praising. His works are praising. खुदावन के जो दस्तकारी है, जो कुछ उसने पैदा किया है, उसकी मखलूकात, वो चरिंद परिंद और ये सारे झाड़ और दरख्त भी उसकी शुक्रगुजारी करते हैं. But man is the one which doesn't do that. हाँ, लेकिन ये एक इंसान ही है जो उस तौर से उसकी शुक्रगुजारी नहीं कर रहा. But who will praise God? कौन खुदावन की शुक्रगुजारी And कर रहा? all your faithful followers will praise God. और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे. Your faithful followers will praise you. और तेरे जो वफादार मुकद्दस लोग हैं वो तेरी सताइश So करेंगे. are we in that group? क्या हम उस ग्रुप में, उस ग्रोह में शामिल हैं? We have lot of WhatsApp group, that group, this group. We should be in the faithful followers group. हाँ, हम दूसरे व्हाट्सएप के बहुत से ग्रुपों में बेशक शामिल हैं, लेकिन खुदा के उस ग्रोह में भी शामिल होना है जो खुदा उनकी सिताइश करते हैं. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Always give a time for praising God. हमेशा किसी न किसी वक्त खुदा उनका शुक्र बजा लाते हैं. Let us praise. Always make a time, maybe 10 minutes, 20 minutes, only thinking about goodness and praising. हाँ, हमेशा खुदावन के कुछ ना कुछ वक्त उसकी भलाइयों और चंगाइयों पर गौर व फिक्र करें और उनके लिए खुदावन का शुक्र और सताइश So करें. the word reminds us. और खुदा का कलाम हमें याद दहानी Why we दिलाता have Bible studies? हम ये बाइबल का मुताला क्यों करते हैं? It reminds us, it refreshes us, it revives us. हाँ, बाइबल स्टडी हमें याद दिलाती है, हमें दोहराती है, हमें बार बार उकसाती है कि हम खुदावंत की सताइश और शुक्र We गुजार should करें. give thanks always. हमें हमेशा खुदावंत का शुक्र बजा लाना है. He shows compassion on us. वो हम पर अपना रहम जाहिर करता है, रहम करता है. And his faithful followers will thank him for all the works that he has done. हाँ, और तेरे मुकद्दस तुझे हमेशा मुबारक कहें तेरी तमाम तर मखलूकात के लिए. Amen. Amen. Mark 10:18 says, मरकस की अंजील 10 बाब और 18 आयत में लिखा है, so only good people will praise him. क्या सिर्फ भले और अच्छे नेक लोग ही खुदावंत की Many सताइश people करें? say, Pastor, I will, after some time, I will come to church. I want to give testimony, not now. I will thank God afterwards, Pastor. Now I have lot of shortcomings, lot of weakness I have. हाँ, बहुत से लोग कलीसिया में से पास्टर जी से कहते हैं कि मैं आऊंगा किसी टाइम, खुदा उनका शुक्र करूंगा, गवाही दूंगा और दुआ करूंगा, खुदा ने बड़ी मेरे लिए काम किए हैं. But Mark's Gospel 10:18, what it says? लेकिन मरकस की अंजील 10 बाब 18 में क्या लिखा है? Let us see that. यहाँ पर देखते हैं. 10:18. हाँ. Yeah, read. यस्सु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक यानी खुदा. आमीन. No one is good. कोई भी नेक नहीं. So that means God says you are, no one is good, but yet God is merciful. हाँ, बेशक कोई नेक और भला नहीं, लेकिन सिर्फ एक है यानी खुदा. Amen. He is good always. वो हमेशा और भला खुदा है. He is always faithful. वो हमेशा भला है. Though we are not faithful, अगरचे हम वफादार ना रहें, but He is faithful. लेकिन वो हमेशा भला Though है. we are not good, अगरचे हम अच्छे और नेक काम ना करें, but He is always good. लेकिन उसकी भलाई अबदी है. No one is good. कोई भी एक भी भला नहीं, नेक नहीं. Amen. Hallelujah. Oh, pastor is good, no? हाँ, हम कहते हैं हाँ पास्टर बहुत अच्छा है. Jesus, when people, the disciples, and when people praise Jesus, Jesus asked, who is good? Only God is truly good. जब लोग खुदा यीशु मसीह को उसकी तारीफ में या कह रहे थे कि वो भला है और नेक और रास्त है, तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कोई नेक नहीं Except God. हाँ, सिर्फ एक खुदा ही है जो नेक है. Amen. We cannot praise human beings. We only praise God, the Father, God the Son, God the Holy Spirit. हम सिर्फ इंसानों को अच्छा और भला और उनकी नहीं कर सकते, लेकिन खुदा एक ही खुदा है जो भला है और उसकी शफकत अब्दी है. 27:13 of Psalms we see. हाँ, ज़बूर 27 में हम देखते हैं. Amen. David always praises God.
जो ज़बूर नवीस दाऊद है वो हमेशा खुदावंद की सताइश और हमद करता नजर आता है। This book of Psalms, it always reminds how to praise God, how to glorify God. हाँ, ज़बूर की किताब हमें हमेशा याद दिलाती रहती है कि हम किस तरह से खुदावंद की सताइश कर सकें, How we can be faithful to God. हम किस तरह से खुदावंद की वफादारी की, How is His goodness. हम उसकी भलाई की शुक्रगुजारी कर सकें। Yet, I will read that, yet I am confident I'll see the Lord's goodness while I'm here in the land of the living. 27 13. हाँ जी। अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदों की जमीन में खुदावंद के एहसान को देखूंगा तो मुझे गश आ जाता। Amen. It says 13, yet I am confident हाँ, मैं भरोसा रखता हूँ, यकीन करता हूँ, I will see the Lord's goodness. क्योंकि मैं खुदावंद की भलाई और अच्छाई को देखता हूँ। Though people backslide, though people have sin or shortcoming, they go away. When they come back, God, you can come confidently to God. हाँ, बेशक बहुत से लोग गिर जाते हैं, पीछे चले जाते हैं और अपनी रूहानी जिंदगी में कमजोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जब वो खुदा के पास आते हैं, Satan could talk to you, God will not love you anymore. और इब्लीस हमारे ज़हनों में तरह तरह के ख्याल और बातें करता है कि खुदा भला नहीं, अच्छा You have नहीं। fallen down. और फिर आप गिर जाते हैं। Satan may say you are fallen down. हाँ, और इब्लीस कहता है कि हाँ अब तो तू गिर गया है। God is a holy God. हाँ, खुदा तो बड़ा पाक He और cannot रास्त है। look at you. हाँ, वो तुझ गिरे हुए को नहीं देख सकता। He will put you down. Satan will put you down. हाँ, और इब्लीस आपको और ज्यादा मायूस करता है और गिराता है। And then he will not allow you to come to God. और फिर वो आपके ज़हन में ये ख्याल आता कि अब तू खुदा के पास नहीं जा सकता। But David says, लेकिन ज़बूर नवीस क्या कहता है? yet I am confident. हाँ, तो भी मैं यकीन रखता हूँ, Though I have fallen down, अगरचा मैं गिर भी जाऊं, yet I am confident. लेकिन फिर भी मुझे पूरा भरोसा I है। will see the Lord's goodness हाँ, मैं खुदावंद की भलाई को देखता हूँ, while I am here among the land of the living. अगरचा मैं अभी इन जिंदों की जमीन पर हूँ। Amen. What is the land of the living? ये जिंदों की जमीन क्या है? What is the land of the living? We should understand it. हमें इस बात को समझना है कि जिंदों की जमीन से क्या मुराद है। Those who are born again, जो नए सिरे से पैदा होते those who हैं, have the life of God, जिनमें खुदावंद की जिंदगी है, they are living people. वो ही जिंदा लोग हैं। And because Jesus said, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा, let the dead bury the dead. मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। That means those who are not born again, इसका मतलब है कि जो लोग मसीह पर ईमान लाकर नए सिरे से पैदा नहीं हुए, those who are yet having body and they are walking or moving, those who are living body life, fleshly life, हाँ, अगरचा वो जिस्मानी और बदनी जिंदगी तो बसर कर रहे हैं, but they don't have a life of God. लेकिन उनके अंदर खुदावंद की जिंदगी So नहीं, they are dead. इसलिए वो मुर्दा हैं। But King David says, what he will do while I am here in the land of the living. और लेकिन यहाँ पर दाऊद बादशाह फरमा रहा है कि जब तक मैं जिंदों की जमीन पर हूँ, Because God has forgiven David, क्योंकि खुदा ने दाऊद को मुआफ किया, and God's life was in David. और खुदावंद की जिंदगी दाऊद में थी। Like David, there was many souls that were faithful to God. और दाऊद की माने और भी बहुत सी रूहें थी जो खुदावंद की वफादार So थी। he's telling that I am confident that I'll see the Lord's goodness while I am here in the land of the living. और वो बयान कर रहा है कि इन ईमानदारों के दरमियान मैं जिंदों की जमीन पर हूँ, यानी वो भी जिंदा हैं। Those who have the kingdom of God in them. हाँ, जिनमें खुदावंद की बादशाही है, They are living in the land. हाँ, वो ही जिंदों की जमीन पर और खुदावंद की बादशाही में जिंदा है। Amen. That's what it says. इसलिए तो वो ये बयान कर रहा है। Amen. That's what we need to understand the New Testament church. हाँ, इसलिए जो नए अहद की कलीसिया है उसको ये समझना है कि जिंदों की जमीन से मुराद ईमानदारों की जमीन पर। Amen. We are born again. We are living with God. God's life is in us. हाँ, हम नए सिरे से पैदा हो चुके हैं और खुदावंद की जिंदगी हमारे अंदर पाई जाती है। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Psalms 145, ज़बूर 145 5 and 7 we read. उसकी 5 और 7 आयत पर हम गौर करेंगे। 45,
5 and 7. Okay, brother. हाँ जी, 100 145 उसकी 5 आए। मैं तेरी अजमत की जलाली शान पर और तेरे अजायब पर गौर करूंगा, और लोग तेरी कुदरत के हौलनाक कामों का जिक्र करेंगे, और मैं तेरी बुजुर्गी बयान करूंगा। वो तेरे बड़े एहसान की यादगार का बयान करेंगे और तेरी सदाकत का गीत गाएंगे। आमीन। I'll meditate on your majestic, glorious splendor and your wonderful miracles. Your awe-inspiring deeds will be on every tongue. I'll proclaim your greatness. Everyone will share the story of your wonderful goodness. They will sing with joy about your righteousness. This is what we need to do. हाँ, यही तो जो हमने कलाम में पढ़ा है हमें करने की जरूरत है। Today, that's what the Bible studies, to meditate upon the word of God. आज का जो कलाम है वो यही है कि हम खुदावंद की भलाइयों पर गौर व फिक्र कर सके। His majestic, glorious splendor. हाँ, और उसकी अजमत की जलाली शान And your wonderful miracles. और उसके जो अजायब हैं, अजीब कामों पर गौर करें। His inspiring deeds. और उसकी कुदरत के अजीब कामों का जिक्र करें। This deed should be always in our tongue. और उसके ये अजायब काम और कुदरत हमेशा हमारी जुबानों पर रहनी चाहिए। On every tongue. और हर एक की जुबान पर होनी चाहिए। Everyone should share the story, the good news of God. Everyone should share the love of God. Everyone should share what God has done, the testimonies of God through our lives. हाँ, खुदावंद की ये भलाई और उसकी कुदरत हमेशा हर एक की जुबान पर रहनी चाहिए कि खुदा किस तौर से भला है, उसने हमें किस तरह से आजाद किया और छुड़ाया है। They will sing with joy about your righteousness. हाँ, वो तेरी कुदरत के तेरी बुजुर्गी का बयान करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. This is what we always need to praise Him. We always need to keep in our mouth, thank you Lord, you are a good God. My every step of is protected. हाँ, इसलिए हमें हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए और उसको तारीफ करनी चाहिए कि वो हमारे हर एक कदम पर वफादार है। Every food particles is blessed. और हर एक दाने खाने का दाना। हाँ, जो एक एक दाने दाने पर खुदावंद की बरकत है और उसका शुक्र करना चाहिए। Everything in your household, every family, children should be should thank Him. हाँ, और घर के सारे अफराद, बच्चे, सबको खुदावंद की तमाम तर जो नेमतें बरकतें हैं उसके लिए शुक्र We should करना। also pray for all the brothers and sisters and families. हाँ, और हमें अपने बहन भाइयों और खानदान के लिए भी खुदावंद का शुक्र करना। Thank you for that brother. और खुदावंद का शुक्र करें अपने भाई के लिए। Thank you for the sister. अपनी बहन के लिए खुदावंद का शुक्र Thank you for करें। the mother. अपनी माँ के लिए खुदावंद का शुक्र करें। Thank you for all the believers. और तमाम ईमानदार भाइयों के लिए शुक्र करें। That's what we have to meditate. इसी बातों पर तो हम खुदावंद के That's why the 5th verse says 145:5, I'll meditate on your majestic, glorious splendor and your wonderful miracles. Your awe-inspiring deeds will be on every tongue. I'll proclaim your greatness. Everyone will share the story of your wonderful goodness. They will sing with joy about your righteousness. आमीन। मैं तेरी अजमत की जलाली शान पर और तेरे अजायब पर गौर करूंगा, और लोग तेरी कुदरत के कामों का जिक्र करेंगे, और मैं तेरी बुजुर्गी बयान करूंगा। वो तेरे बड़े एहसान की यादगारी का बयान करेंगे और तेरी सदाकत का गीत गाएंगे। Amen. So we have to remind His goodness to all. और इसी तरह हमें इन तमाम बातों को बार बार याद करके खुदावंद की सिताइश करनी है। So let us always take a mark of it and say, yes Lord, I pray for that brother, I pray for this brother, I pray for myself also, I pray for my job, I pray for my goodness, I pray for my health. Though you are sick, yet you shall pray for your own self, for everything. हाँ, और इसीलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, कामकाज के लिए, जिंदगी के हर एक बख्शिश के लिए कि खुदावंद भला है, और उसकी सताइश और शुक्रगुजारी करते हैं। Create an atmosphere of thanksgiving. और हमेशा इस माहौल में रहें, अपने आप को उस माहौल में रखें कि शुक्रगुजारी हमेशा Always in the thanksgiving atmosphere. हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी का माहौल अपने आप में बनाए रखें। Oh, the Spirit of God will move around us. और फिर खुदावंद का रूह आपको घेरे रहेगा। Hallelujah. Hallelujah. God dwells among the praises of His people. हाँ, खुदावंद अपने लोगों पे, खुदावंद की हजूरी उसके लोगों के चौगिर्द रहती है। God will always be in His presence will be in midst of us. हाँ, और खुदावंद की हजूरी अपने उसके लोगों के दरमियान मौजूद होती है। Hallelujah. Hallelujah. So my dear brethren, मेरे प्यारे भाइयों, we need to create that atmosphere by praising God. हाँ, हमें उस माहौल में हमेशा बने रहने की जरूरत है कि हम हमेशा खुदावंद का शुक्र करते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord.
Amen. आमीन। Let us read Psalms 33:5. हाँ, ज़बूर 135 और उसकी 33. 33 33:5. हाँ, ज़बूर 133 No, 133, no, only 33. only 33 sorry। Yeah. So Psalms 33:5 it says, He loves whatever is just and good. The unfailing love of the Lord fills the earth. वो सदाकत और इंसाफ को पसंद करता है, जमीन खुदावंद की शफकत से मामूर है। So see, what God loves, what God likes, we should do that. हाँ, हम देखते हैं कि खुदा किस तौर से शफकत और शफीक खुदा है और किस तरह से हमसे मोहब्बत रखता है। He loves whatever is just and good. The unfailing love of the Lord fills the earth. हाँ, वो सदाकत और इंसाफ को पसंद करता है और जमीन खुदावंद की शफकत से भरी है, मामूर है। Because of his children, when we love just and good, then the unfailing love of the Lord will fill the earth. हाँ, जब उसके लोग सदाकत और इंसाफ को पसंद करते और जाहिर करते हैं तो पूरी जमीन खुदावंद की शफकत से मामूर See हो God's जाती है। protection, how it comes. और देखिए कि खुदावंद की जो मुहाफजत है किस तरह से आती है। If the children of God love to follow the justness and the goodness of God, whatever is just and good, if we love and do that, God is pleased. He'll fill that whole earth. Those sinners are there, they will enjoy the blessings of God. हाँ, जब खुदा के लोग सदाकत यानी रास्तबाजी, सच्चाई और इंसाफ को पसंद करते और जाहिर करते हैं, उसके काम करते हैं, तो फिर खुदा की शफकत, उसकी रहमत पूरी दुनिया पर छा जाती है और दूसरे लोग जो बेशक गुनहगार हैं वो उसको महसूस करते हैं और एंजॉय करते हैं। When we see incident in the New Testament, जब हम नए अहदनामा में एक वाकया देखते हैं, when adulterate woman, एक जो बदकार औरत थी, all the people were about to stone her. और तमाम जो लोग थे उसको संसार करना चाहते थे। They came to the just and good and righteous Jesus. हाँ, वो एक सदाकत, रास्तबाज और इंसाफ वाले खुदा यीशु मसीह के पास जब आते हैं, She came to Jesus. वो खुदा यीशु मसीह के पास उसको लेकर आते हैं Jesus was just and good, और खुदा यीशु मसीह इस सदाकत और इंसाफ पसंद full है of compassion and love. और वो मोहब्बत से और तरस से भरा है। He did not condemn that lady, उसने उस औरत पर सजा का हुक्म नहीं किया, but he did not condemn others also. और उसने दूसरों को भी उसको सजा देने का इख्तियार नहीं दिया। When we repent or when we know our mistakes, when we forgive others, जब हम अपने खामियों कमजोरी को जानते हैं और दूसरों को माफ करते this हैं, is called just. इसी को हम इंसाफ कह सकते हैं। And the goodness. और सदाकत और भलाई, What was that goodness in Jesus? खुदा यीशु मसीह में ने क्या भलाई की? He said, I too do not condemn you. हाँ, खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं भी तुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाता, But sin no more. लेकिन जा दोबारा गुनाह ना करना। So, if this type of children of God are there, हाँ, यानी फिर अगर हम उस तरह से मसीह यीशु की मानद रास्तबाजी और सदाकत से भरे होंगे, then their prayers will fill God's goodness in that place. और खुदा यीशु मसीह की दुआ ने उस सारी वहां पर That type of believers, just and good believers are there. हाँ, जब इस तरह के रास्तबाज और सादिक लोग होंगे And when they pray, और जब वो दुआ करेंगे, the love of the Lord will fill that earth. और खुदावंद की शफकत उस पूरी जगह पर छा जाएगी, It will flood. The love of God will be flooded. और खुदावंद की मोहब्बत पूरी सैलाब की मानद उस जगह पर होगी। One righteous person also, God will save that land. हाँ, सिर्फ एक ही रास्तबाज की बदौलत खुदा सारी जमीन को बख्शता है। So God is expecting us, by praising God and thankful God and faithful to Him, you will create an atmosphere. हाँ, खुदावंद ये तवक्को और चाहता है कि हम रास्तबाज और पाक हों और हमारे वसीला से खुदा फिर उस इर्द गिर्द जगह को So we are always संभाल करे। thankful for everything. इसलिए हमें हर एक बात के लिए हमेशा खुदा का शुक्र करना है। Hallelujah. One breath also we have to thank God. और एक एक सांस के लिए खुदा का धन्यवाद The कहना है। water we drink we have to be thankful to God. और जो
पानी हम पीते हैं उसके लिए खुदा का शुक्र करें। Everything we should be thankful to God. और एक छोटी से छोटी बात के लिए खुदा This का is शुक्र called करें। faithfulness. हाँ, यही तो वफादारी है। In small things we should be faithful. जब हम छोटी छोटी बातों में वफादार और शुक्रगुजार हैं। I thank God I can read the word. खुदा का शुक्र बजा लाएं कि मैं कलाम मुकद्दस को पढ़ सकता I हूँ। thank God I understand the word. हाँ, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मैं इसको समझ भी सकता हूँ। I thank God gave me food today. हाँ, खुदावंद ने मुझे आज खुराक और खाना मुहैया किया। खुदा I thank God He took me safe and brought me safe. हाँ, खुदावंद का धन्यवाद कहें कि वो मुझे बाहर भी ले गया और हिफाजत से वापस ले आया। Let us flood our mouth with thanksgiving. हमेशा अपने मुंह से खुदावंद की शुक्रगुजारी भरपूरी से करते रहें। Amen. Let it be flooded. हाँ, और सलाब की मानद खुदावंद की हमेशा शुक्रगुजारी Let करते रहें। every Christian, let every children of God flood the earth with thanksgiving. हाँ, हर एक ईमानदार, हर एक मसीही खुदावंद की हमेशा शुक्रगुजारी करता रहे। Amen. Hallelujah. What will happen? और फिर क्या होगा? God is pleased. और खुदावंद खुश होगा। God will come and dwell among us. हाँ, खुदावंद आएगा और हम में सुकूनत करेगा। Amen. आमीन। If He comes, nothing, corona, nothing can touch. हाँ, जब खुदावंद हमारे साथ आकर खुदावंद हम में मौजूद होगा तो फिर कोई किसी तरह की बीमारी वबा नहीं रहेगी। Psalms 100 chapter 4 and 5 read. हाँ, ज़बूर उसके 100 ज़बूर 4 and 5. 5 और 4। Let us read Psalms chapter 100, 4 and 5. Enter his gates with thanksgiving. What the Bible says, enter his gates with thanksgiving. When you enter in the presence of God, when you go and kneel down, when you go for a meal, prayer, thanksgiving. Thank you, Lord. Today I am able to see and enter into the church. I'm alive. I thank you, Lord, for the day, for the sun did not smite me. You kept me as an apple of an eye. Enter his gates with thanksgiving. Go into his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good. His unfailing love continues forever, and his faithfulness continues to each generation. आमीन आमीन। ज़बूर 100:4-5 में लिखा है, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। Amen. So our coming children, we say we want to store money in the fixed deposit. We want to have money, properties. That is not what you need to store. You need to store God's goodness for your coming generation. हाँ, आजकल की जो नस्ल है वो ये सोचती है और सोच विचार करती है कि हम बहुत बैंक बैलेंस बनाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे और ये सारी चीजों को सेव करेंगे, लेकिन हमें इन बातों पर नहीं बल्कि खुदावंद की शुक्रगुजारी पर गौर करना। We should, when we praise, when we thank God, what happens is, for our future generation, God will be faithful for them. हाँ, जब हम शुक्रगुजारी करते रहते हैं तो हमारी आने वाली जो पुश्तें हैं खुदा उनको वफादार और उनके साथ भला है। Hallelujah. Hallelujah. You could not give anything good for them, not money, palace or car or bungalow and all these things. What you can give is for your children. You sow thanksgiving to the Lord. The children will leave the faith, the faithfulness of God. हाँ, each generation. हम अपने बच्चों को गाड़ी, बंगला, दुनियावी चीजें और दौलत नहीं बल्कि शुक्रगुजारी के साथ हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें, ताकि खुदा हमारी आने वाली नस्लों को बाबरकत और शुक्रगुजार वफादार बनाए। Amen. Hallelujah. You can impart that faithfulness to the generation, the coming generation. हाँ, आप आने वाली नस्ल के लिए वफादारी को अभी से तैयार कर सकते हैं। Amen. Hallelujah. We see Psalms 107, 8, 9. ज़बूर 108 7 107, ज़बूर 107 8 and 9. और उसकी 9 और 10 आयत। 8 and 9. 8 और 9। Let them praise the Lord for his great love and for the wonderful things he has done for them. For he satisfies the thirsty and fills the hungry with the good things. काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातर उसकी सताइश करते
क्योंकि वो तरसती जान को सैर करता है और भूखी जान को नेमतों से मालामाल करता है। This is what we need to train our children, train ourselves. Our tongue should not speak unwanted things, but our tongue should be trained to praise and thank God. हाँ, यही वो बातें हैं, कलाम है जो हमें अपने आने वाली नस्ल को और बच्चों को सिखाने की जरूरत है कि हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें। This tongue needs to be always praising God, not with bad anger words or hatred words, but we need to train our tongue also to praise Him and thank Him. हाँ, हमें अपनी जुबान को भी सिखाने की और आदत डालने की जरूरत है कि हम हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी, हम्द और तारीफ करते रहें, ना कि गुस्सा और बुड़बुड़ाते रहें। Some people say when they open their mouth, people cannot stand there. हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि जब कोई बोलता है या मुंह खोलता है तो कोई खड़ा नहीं रह सकता। Because their words will pierce their heart and so what do you call hurt many people. हाँ, क्योंकि वो जब बोलता है तो बहुत से लोग उससे खफा होते हैं And many people fear और बहुत से डरते भी हैं because of his tongue is like a sword. हाँ, क्योंकि उसकी जुबान जो सी है बड़ी करख्त है और तलवार की मानता है। He hurts everybody. वो हर एक को निशाना बनाती है और उनको People bow and go away. और लोग बस डरते और झुकते निकल जाते So that is not the one. That is our tongue should not be like that. हाँ, हमारी जुबानें इस तरह की नहीं होनी चाहिए। Our tongue should not be speaking negative. हमारी जो जुबानें हमेशा नेगेटिव नफी बातें नहीं करनी चाहिए। But our tongue should always praise God and thank Him. हाँ, बल्कि हमारी जो जुबान है हमेशा खुदावंद का शुक्र गुजार हो। What God gave, what always crying. This time nothing I have. Oh, I'm very poor. I'm always this one. I'm always some negative. हाँ, हम हमेशा कुछ लोग अपने मुंह से यही कहते रहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, मैं मर गया, ये वो, मतलब हमेशा ना शुक्र रहते हैं। Negative बात और मनफी ख्याल रखते हैं। Amen. So that is why the tongue which God has given is to praise Him, to thank Him for every good deeds God has done. हाँ, लेकिन इसके बरक्स हमेशा हमारी जुबानें खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए, उसकी सताइश और हम्द के लिए तैयार रहें। Amen. Amen. Let us turn to Psalms 103. हाँ, ज़बूर 103 13 and 14. 13 और 14 आयत। In the beginning I said God is like a father to us. हाँ, शुरू में जैसे मैंने बयान किया कि खुदा एक बाप की मानद है। His love He shows like a father's love to us. उसकी मोहब्बत एक बाप की मोहब्बत की मानद है जो हम And पर He gave, when we are in fear, we need the father's love. सॉरी When we are in fear or trouble, we need the Father to stand beside us. हाँ, जब हम खौफ में होते हैं, डरते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा बाप हमारे साथ हो। He's like our father. हाँ, और इसी तरह खुदा इसी की मान हमारे बाप की मानद है। Amen. When you need love or compassion, He's like a mother to us. हाँ, जब हमें तरस और मोहब्बत की जरूरत होती है तो वो एक माँ की मानद भी हमारे When साथ we are है। weak, He's strong to us. हाँ, जब हम कमजोर होते हैं तो वो हमें कुव्वत बख्शता है। Hallelujah. Hallelujah. So let us read it. The Lord is like a father to His children, tender and compassionate to those who fear Him. हाँ, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं। What is fear? हाँ, ये तरस क्या है? Fear means revering God. और खुदावंद का डर है जो है कि खुदावंद की अकीदत करना, Respecting God. और खुदावंद की इज्जत करना, Honoring Him. और उसको इज्जत करना उसके So लिए। if God is a father to us, we should always praise Him. Fear means always remember the goodness of God in our lives. हाँ, जब हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं तो हमेशा डरते कांपते हुए अपने दिल में खुदावंद की मोहब्बत और इज्जत रखते हुए आए। See what the 14th verse says. हाँ, 14 आयत में क्या लिखा For है? He knows how weak we are. क्योंकि वो हमारी सरशस से वाकिफ है। He remembers we are only dust. उसे याद है कि हम खाक हैं। Our days are on the earth like grass. इंसान की उम्र तो घास की मानद Like है। wildflower we bloom and die. वो जंगली फूल की तरह खिलता है। And 16, the wind blows and we are gone. हाँ, और हवा उस पर चलती और वो नहीं। As though we had never been here.
अगर और उसकी जगह उसे फिर ना देखेगी। But the love of the Lord remains forever. लेकिन खुदावंद की शफकत हमेशा के लिए। उससे डरने वालों पर अजल से अबद तक और Amen. उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है। Amen. Hallelujah. So my dear brother, what we see, God's love is like a love of the Father. हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम क्या देखते हैं कि खुदा की मोहब्बत एक बाप की मानद है। Let us go boldly to Him. हाँ उसकी हजूरी में दलेरी के साथ आए। But God says He knows our weakness. हाँ खुदा तो हमारी कमजोरियों को जानता है। God knows our imperfectness. हाँ खुदा हमारी नाकामलियत को जानता है, हम कमजोर हैं। God knows everything in your heart. हाँ खुदा आपके दिल में हर एक बात और चीज को जानता है। God knows we are dust. हाँ खुदा जानता है कि हम तो एक खाक की मानद है। God knows our life on this earth, how long we are going to be. हाँ खुदा जानता है कि हम इस दुनिया में कितनी देर जीते रहेंगे। When He knows our life, when He knows our character, when He knows everything, why not the condition where we are? You praise and thank God. हाँ जब खुदा हमारी हर एक बात और जिंदगी के बारे में जानता है कि हम खाक हैं और कुछ भी नहीं, तो हमें हमेशा खुदा उनका शुक्र करना चाहिए। Don't say that though you have sin, though you have shortcoming, yet you thank God. Don't look at that. God will take care of your sins. हाँ, अगरचे हम गुनाह कमजोर हैं और गुनाह की हालत में हैं, तो इस बात पर गौर ना करें, बल्कि खुदा उनकी हजूरी में आए और उसको शुक्र बजा लाएं। Spread His good news to all the places. हाँ और इस खबर को पूरी तरह फैला दें इर्द गिर्द। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Some people say he have lot of shortcoming. He's preaching there. हाँ कुछ लोग कहते हैं ये तो बड़ा कमजोर है और गुनहगार है और ये यहाँ पर कलाम सुना रहा है। God does not see that way. हाँ खुदा इस तरह से नजर नहीं With करता। the same word, He will change that person. हाँ और इसी कलाम से वो उसको तब्दील कर सकता है। He will wash that. हाँ और उसको धोता है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. When a person carries a soap, हाँ जब एक इंसान साबुन लेकर आता है, he wants to give it to somebody to wash hand. हाँ और वो चाहता है किसी को देता है कि वो अपने हाथों को So धोए। even his hands also become soap. हाँ और उसके जो देने वाला है उसके हाथों में भी साबुन लग गया। So both have to wash again. हाँ तो फिर दोनों को हाथ धोना पड़ेगा। Amen. The one who carries the word or preaches, it washes him and washes others also. हाँ जो कोई कलाम लेकर आता है वो कलाम से अपने आप को भी धोता है और आने दूसरों को भी धोता है। Don't wait, only pastor need to preach. हाँ सिर्फ इस बात का इंतजार ना करते रहें कि खुदा का खादम ही कलाम सुनाए। When you also carry the word, हाँ जब आप भी कलाम की बिशारत को लेकर when निकलते people हैं, ask preach, हाँ जब लोग कहते हैं कि प्रीच किया जाए, कलाम but सुनाया some जाए, people, because of their guilty, the Satan reminds you are a sinner, you cannot preach. So God says, let everyone come to me. हाँ अबलीस तो आपके ख्याल में और सोच में डालेगा कि आप तो बदकार हो, गुनहगार हो, कमजोर हो, लेकिन खुदा कहता है हर एक मेरे पास आए। That is what God's goodness is. हाँ यही तो खुदा की भलाई और अच्छाई है। We see qualification. हम तो तालीम को देखते हैं। How many experience you have? हाँ कितना तजर्बाकार है। How many demons you chased? हाँ कितनी आपने बदरुएं निकाली हैं। How many healings you have done? और कितने मौत से और शिफा बख्शी। How much of videos you have in YouTube? और कितनी आपने वीडियो YouTube पर डाली हैं। How many people are followers? और कितने आपको फॉलो कर रहे हैं, देखने वाले How हैं। big is your church? हाँ कितना बड़ा आपका चर्च बिल्डिंग How है। much link you have? और कितने आपके रवाबत और ताल्लुकात हैं। God does not see all the things. लेकिन खुदा इन बातों को He नहीं chooses देखता। the foolish of this world. हाँ उसने इस दुनिया के नकमों और हकीरों को चुन लिया। He will use them to preach the gospel. हाँ खुदा उनको चुनता और इस्तेमाल करता और मुनादी It's करवाता। not my perfectness. हाँ ये मेरी कामलियत नहीं। It is not my boldness. हाँ ये मेरी दलेरी नहीं। It is not my intellectual. हाँ ये मेरी जहानत और It is not my knowledge. हाँ ये मेरा इल्म नहीं। It is nothing of me. हाँ ये मैं नहीं हूँ। I am nothing. हाँ मैं तो कुछ भी नहीं। He should increase, I should decrease. हाँ लाजमन वो बढ़े और मैं घटूं। So when we offer nothing, so God will see that one time also the old lady put in the offering box. हाँ जब कलाम में हम देखते हैं कि एक बुजुर्ग औरत एक दमड़ी डालती है हैकल के बॉक्स में। God saw that faithfulness. हाँ खुदा उसकी वफादारी पर नजर करता है। You don't have anything. हाँ अगरचे आपके पास कुछ भी नहीं, But you came forward to offer it. हाँ लेकिन आपको उसको देना है।
You came forward to offer it. हाँ, लेकिन आपको आना है, खुदा की हजूरी में आना है ताकि दिया जाए। वो आया था क्योंकि खुदा की हुजूरी में कमजोरी में आया था। हाँ, वो बूढ़ी औरत कमजोरी की हालत में, नादारी की हालत में जो कुछ था वो लेकर आई। God is not expect you become perfect and then come to me. हाँ, खुदा ये तवक्को नहीं करता कि आप बिल्कुल कामिल और रास्त होकर फिर मेरी हजूरी If में man can be perfect, then there's no need of Jesus coming. हाँ, on his अगर earth. इंसान खुद से कामिल हो सकता तो खुदा की और यीशु मसीह के आने की जरूरत नहीं। If man has goodness in him, the God's goodness is not needed. हाँ, अगर इंसान में भलाई और नेकी होती तो फिर खुदा की नेकी और भलाई की Come जरूरत- as you are. हाँ, आए जिस भी हालत में हैं आप, Come as you are. और जैसे भी हैं आप खुदा उनकी हजूरी में आए। Amen. Hallelujah. God knows our lives. Wow. It comes like a flower or leaves that blooms and then dries off. हाँ, खुदा जानता है कि इंसान जो है घास की मानद है, खाक की मानद है और फूल की मानद है। But the love of the Lord remains forever. हाँ, लेकिन खुदावंत की मोहब्बत अब्दी मोहब्बत है। That is what God wanted us. हाँ, यही तो खुदा हमसे चाहता है। Let us develop that character of thanksgiving in our mouth. हाँ, अपने अंदर ये खूबी और किरदार पैदा करें कि खुदावंत की शुक्रगुजारी करते हैं। People carry water bottles. हाँ, लोग अपने साथ साथ पानी की बोतल रखते They will हैं। say, my tongue is getting dried. हाँ, और कहते हैं मेरा मुंह सूख रहा है, जुबान सूख। Why? हाँ, क्यों ऐसे क्यों है? Because of talking too much. हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा बातें और बोलते हैं जब बातूनी होते हैं। Because of gossip. हाँ, बहुत ज्यादा गपशप। बातचीत करने, गपशप करने से Their mouth get dried. और उनका मुंह सूख जाता है। Not by praising God. हाँ, ना कि खुदावन की तारीफ और सिताइश। God said, open your mouth, I'll fill. और खुदावन का कलाम कहता है अपने मुंह को खोल और मैं उसे भर दूंगा। God wants to fill us with the praise and thanksgiving. हाँ, और खुदा हमारे मुंह को शुक्रगुजारी से और स्ताइश से भरता है। Let us train our tongue in praising God and praising and thanking for everybody. हाँ, अपनी जुबान को इस बात की आदत डाल के हमेशा खुदावन की शुक्रगुजारी और हमद से तारीफ Our करते tongue रहें। has to be trained. हमें अपनी जुबान को आदी बनाना है इस बात Because you fill your lips, your mouth with praises, जब आपके जुबान और लब खुदावन की सिताइश करते हैं, your body is the entry of your body is completely blessed. और फिर आपकी ये जो मुंह है, जो एंट्री है आपके अंदर, ये बाबरकत है। Thank you for the water, Lord. Thank you. Glorify. और खुदावंत का शुक्र करें पानी के लिए भी, और खुदावंत के नाम को इज्जत और जलाल दें। Thank you for the grain that goes to the entry. That entry is it's sanctified. हाँ, और खुदावंत का शुक्र करें कि हर एक चीज जो मुंह में से जाकर अंदर गुजरती है, इसके लिए खुदावंत का Because शुक्र your करें। entry is clean, so whatever goes will become clean. हाँ, क्योंकि जब आपका मुंह और ये एंट्री पाक होगी तो जो भी चीज उसमें से गुजरेगी वो पाक ठहरेगी। Amen. Hallelujah. You know the medical doctors or in the surgery room, they keep every instrument, everything clean, what do you call, bacteria free. हाँ, जानते हैं कि जो डॉक्टर्स का ऑपरेशन वाला कमरा होता है कि वहां पर हर एक चीज, औजार और जमीन, फर्श, उसको उन्होंने स्टेरलाइज किया होता है। So nothing should come with bacteria or any dirt can enter there. हाँ, और उसको उन्होंने प्रॉपर तौर बंद किया होता है, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वबा, कोई भी जरासीम अंदर नहीं आ सकता। Amen. Anything which is going inside should be sanctified, cleansed. हाँ, जो भी अंदर जाता है उसको वो पाक करते, साफ करते हैं। The same way, इसी तरह से if your mind is filled with thanksgiving, अगर आपका जहन, आपका दिमाग जो शुक्रगुजारी से भरा if your रहेगा, mouth and tongue is praising God, और जब आपका मुंह और जुबान हमेशा खुदा उनकी शुक्रगुजारी so anything that enters will be sanctified and our God body will be healthy. हाँ, और फिर जो कुछ भी आपके मुंह में जाएगा, दाखिल होगा, वो पाक और साफ होगा। And that is the secret of our life. यही तो हमारी जिंदगियों की राज है। When we get food, we are hungry. We will say, "Oh, pull here. Thank you, Lord, praise." हाँ, सॉरी। So when we get the food, हाँ, जब हम खाना खाने लगते हैं, when we are hungry, जब हमें भूख लगती है, we don't see anything. If it is a good food, tasty food, हम ये नहीं देखते कि वो मजेदार या लजीज खाना, though it is tasty, अगरचे बेशक वो मजेदार है, we don't say thanks. हम शुक्रगुजारी नहीं करते। Amen. What happens? तो फिर क्या होता है? Because of the tastiness, we forget thanking God. हाँ, क्योंकि खाना ही इतना मजेदार है, हम शुक्रगुजारी करना भूल जाते हैं। Amen. Hurry, buddy. हाँ जी।
Hallelujah. Hallelujah. So even praying time, if pastor or somebody prays a little longer, people will walk out. हाँ, कभी कभी जब पादरी दुआ लंबी करता है, शुक्रगुजारी करता है, तो लोग उकता जाते हैं। Amen. Because they will give thanks to everything. क्योंकि पादरी हमेशा हर एक बात के लिए So शुक्रगुजारी we करता should है। give thanks. हमें भी इस तरह ही करना, शुक्रगुजारी करना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। 143:10, what it says, last we'll read and close it. हाँ, एक आखिरी कलाम पढ़ेंगे। 143, Psalms 143, 10th verse. ज़बूर 143 और उसकी 10 आयत। Teach me to do your will, for you are my God. May your gracious spirit lead me forward on firm footing. हाँ जी, मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। Amen. आमीन। Teach me to do your will. हाँ, मुझे सिखा कि हम किस तरह से खुदावंद की मर्जी What पर is the चलें। will of God? खुदावंद की मर्जी क्या In है? everything give thanks. हाँ, हर एक बात में खुदावंद की But this शुक्रगुजारी is the करो। will of God. यही तो खुदावंद की मर्जी है। In everything. हर एक बात में। Hallelujah. Hallelujah. Paul says, in everything give thanks, for this is the will of God. हाँ, थस्सलुनीकियों में लिखा है कि हर एक बात में शुक्र करो क्योंकि खुदावंद की यही मर्जी है। I will read that word. थस्सलुनीकियों 5। Thessalonians 5:18. दूसरा First थस्सलुनीकियों, Thessalonians 5:18. हाँ जी, फर्स्ट पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 18 आयत। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। Amen. So in everything give thanks, for this is the will of God. So what is the will of God? हाँ, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यस्सु की खुदा की यही मर्जी है। Be thankful in all circumstances. हर तरह के हालात में खुदावंद का शुक्र But this is the God's will. यही तो खुदावंद की मर्जी है। For you who belong to Christ Jesus. क्योंकि मसीह यस्सु में खुदावंद की मर्जी ये है। So my dear brothers and sisters, सो मेरे प्यारे बहन भाइयों, every one of us, हम में से हर कोई, we need to fill our mouth with thanksgiving. This is the will of God. हाँ, यही तो खुदावंद की मर्जी है कि हमारे मुंह लब हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी। People say, I don't know what is the will of God in my life. हाँ, लोग कहते हैं कि पता नहीं खुदा की क्या मर्जी है मेरी जिंदगी में। If you know the simple will of God, अगर आप खुदावंद की ये सादा मर्जी को ही समझ लें, thanking God, इस बुनियादी बात को कि खुदावंद का शुक्र करें, He will let you know every will of Him. हाँ, फिर आप खुदावंद की गहरी मर्जी को भी समझ पाएंगे। Amen. आमीन। My dear brother and sister, मेरे प्यारे बहन भाई, today आज let us start filling our mouth with thanksgiving. आए हम हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। Mind, our thoughts, our heart to be filled with thanksgiving. हमारा जहन, हमारी सोचें, हमारे ख्याल हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरे रहे। Amen. Let us not be empty. कभी भी खालीपन ना रहे। Thank you, Jesus. Praise you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Khudabab शुक्रगुजार है। मेम रहान दे बे शकला बाबा बारा। I praise and thank you, Lord, for your word. I thank you for the Holy Spirit. मैं शुक्रगुजार हूँ पाक रूह के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे सभी भाई बहन परिवारों के लिए जो आज मीटिंग रफाकत कर रहे हैं। सब खुदावंद आज जमा हुए हैं, उनके लिए मैं शुक्रगुजार रहा हूँ। खुदावंद सबको शिफा देने के लिए, अच्छी खुदावंद नींद देने के लिए, अच्छी खुराक देने के लिए, शिफा देने के लिए, आराम सुकून नूर से भरने के लिए मैं शुक्र गुजारता हूँ। अच्छी कलीशा के लिए, अच्छी कलाम के लिए, अच्छी कुव्वत के लिए। कोरी महाम ब्रहाजो देखर राती ब्रहातो मौके ब्रहालोशी ब्रहाते ब्रहाता बाबा रूखी बहान बरा लिख रमान दे ब्रेसो बे 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 साखर रे प्रेम पर बाबा बा। थैंक यू इन द स्पिरिट। ओ रबा बाबा रूह में शुक्र गुजारते रहे। बेसो ब्रेन थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू। सांस लेने के लिए शुक्र गुजारते हैं। जिंदो
दिलों को जमीन में रखने के लिए शुक्र गुजारते हैं, इस तरह के रफाकत के लिए शुक्र गुजारते हैं, आज की बाइबल स्टडी के लिए शुक्र गुजारते हैं। जो भी खुदावंद आपने हमें दिया, आपको हमारे होंठों से आपकी मर्जी यही है कि हमेशा शुक्रगुजारी से हम भरा रहें, हमारे होठें, हमारे लफ्ज, हमारे जीभें शुक्रगुजारी से भरा रहें। हम धन्यवाद करते हैं, शुक्र गुजारते हैं, मांगते हैं यीशु मसीह के मसा के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह और सलाम। हालेलुया। खुदावन जो बायों को चंगा करना है, हम फिर दुआ करते हैं, भाई दाऊद सलामत के लिए दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू पापा, थैंक यू पापा, थैंक यू पापा। खुदावंदा जब टेस्ट लेते हैं, खुदावंदा ना को जो भी मुंह से लेते हैं, यीशु का धन्यवाद से भर दें। खुदावन उनके टेस्ट में क्लियर आए, यीशु के लहू मैं छिड़कता हूं दाऊद सलामत के पर, और खुदावंदा कल के टेस्ट में वो नेगेटिव आके खुदा तेरे बेटे कामों में जा सके, परिवार में अमन चैन रह सके। खुदावंदा सब टेंशन वाली बातों को निकालते हैं, नेगेटिव वर्ड को निकालते, कैंसिल करते हैं नेगेटिव बातों को, यीशु का लहू से लिपटते हैं। और भाई काशिफ के लिए दुआ करते हैं, उनका मेदे टच कर खुदा, हील कर उनके, खुदावंदा अच्छी नींद दे, सुकून दे, सबके मेदे के बीमारियों को टच कर, हील कर खुदावंदा। जो भी खौफ है, डर है, सबको निकाल दे। नौकरियों का, परिवारों में जो भी मुश्किल आते हैं, सबको दूर कर खुदावंदा, आराम दे, सुकून दे। मांगते यीशु मसीह के मसा के नाम से, आमीन 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 आमीन। थैंक यू लॉर्ड। सबको सलाम और जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।